Bismillahirrahmanirrahim. This is Adnan Ahmed Asmani, and we are in the A-level class. And this is the Python console I am telling you for doing writing Python code. And it can identify the error without the use of internet. You have an input screen in that. You have an output screen in that. So mostly we use in Karachi Grammar School the Spider. Whenever you go to the examination center, it will already install 7 to 8 consoles. Either up to your choice, you use PyCharm or you can use my advisable Spider. Okay. Then I will be introducing you a course as well also today to keep up the basic of Python programming, like loops, creating variables, और प्रिंटिंग कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है यू शुड नो अबाउट दिस. ये थोड़ा सा लोड करने में हैवी है बट इट इज़ वेरी गुड कि व्हेन एवर यू डू एनीथिंग रॉन्ग इट आइडेंटिफाई एनी कमांड बिकॉज सिंटैक्स आपका चेंज हो जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बट पाइथन इज नियर टू द pseudocode. It is near to the pseudocode and you have already done pseudocode in the previous section of AS Computer Science. So we have some topicals, and you know about topicals or a particular topic we have past paper for that. But meanwhile, we have a short session right now here, so I'm not directly going with the paper. Just giving you an overview about that. This will be given, and this week we will complete the P4 one topic that is called stack. Okay, but meanwhile I introduce you a international course which will help out in international universities to take admission and get a plus point because that is will be an international certification. That is in a past paper question you have. We will discuss this later on. Let me introduce you a simple course that is called Python Essential. And I will enroll you in that course, or you can enroll you by your own self. So that is called Cisco Python Essential. Cisco is a Networking Academy International Python Essential 1 course. If you doesn't know anything about program code like this, so this is an ideal course for you. It gives you the certificate. There are 4 modules and by self-paced you can enroll yourself, clear the 4 module and got the international certificate of entry-level programming. It covers the basic of A2 computer science practice. Self-paced, you can sign up on this site and enroll yourself. Otherwise, you can go through with the instructor lead. Okay, there are 2 options for you. And it is 30-hour course. You can complete it in a whole month by practicing it. And the curriculum I can show you about, it is about the introduction of Python, how it came in work, ठीक है, डाउनलोडिंग करना, ये सारी चीजें. अच्छा, स्पाइडर आप अगर आप लिखेंगे गूगल पे स्पाइडर पाइथन आप लिखेंगे कंसोल, it will be easily download. You will go the console for the spider. अब ये नॉर्मल python.org आ रही है. This is the website. I am just sharing the link in your chat. ये आपको फॉरवर्ड मिल जाएगा. इसके अलावा सिस्को का भी मैं आपको सेंड कर रहा हूँ और मैं कोर्स को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करके फिर हम पाइथन बेसिक स्टार्ट करेंगे. ये करने से ये कि सेल्फ स्टडी है.
पहले में इंट्रोडक्शन है, एंड इन द सेकंड पार्ट आपको जो है वो वेरिएबल डिक्लेयर करना सिखाया है, प्रिंट करना सिखाया है, ठीक है। और इसी के अंदर कंसोल मौजूद है, यानी इनपुट और आउटपुट स्क्रीन मौजूद है ऑलरेडी, तो आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। और फिर उसके बाद जब ये मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा, प्रिंट के सारे फंक्शंस आ जाएंगे पाइथन के अंदर, तो दैन फिर इस कोर्स के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करना आपको सिखाया गया, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको इनर दिखा देता हूँ कि किस तरह ये कर रहा है, देन वी मूव टूवर्ड्स। आई एम इंस्ट्रक्टर इन द अकेडमी, सो यहाँ पर आपको साइन अप करना पड़ेगा। यहाँ से हम आयु स्कोरिंग सिस्टम में लेते हैं। इसमें दो ही है। सो हियर वी हैव द कोर्स जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले वाले में जो है वो थ्योरी है, तो इट्स नॉट अ बिग डील। और फिर इसमें पूरा जो है वो इंट्रोडक्शन आ जाता है पाइथन का। जब आप इसको बिगिन करते हैं तो ये सिर्फ थियोरेटिकल क्वेश्चन है कि, और इसमें जो है ये आपको सर्टिफिकेशन मिली है, सर्टिफाइड एंट्री लेवल पाइथन प्रोग्रामर, एक फ्रॉम द पाइथन इंस्टीट्यूट विद सिस्को सर्टिफिकेट। और इसके अलावा जो है लैब्स हैं कुछ है, इसके पूरे सिलेबस की डिटेल्स हैं। और इस कोर्स के 4 मॉड्यूल आपके पास हैं ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद आप जब उसके सेकंड मॉड्यूल में जाते हैं, जो मैं आपको बता रहा था, वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकंड मॉड्यूल। सो इसका पहले मॉड्यूल का एग्जाम आप यूज देंगे, सेकंड मॉड्यूल्स में जो है वो डेटा टाइप वेरिएबल दिए हैं, और इसी के अंदर जो है वो आपको कंसोल भी दिया हुआ है। बिगिन विद हेलो वर्ल्ड, ये दुनिया का पहला कोई भी प्रोग्रामर हो बेचारा, ही हैज टू गो फॉर हेलो वर्ल्ड। तो अब यहाँ पर जब आप जाएंगे योर फर्स्ट प्रोग्राम, तो ये कंसोल आपको बना बनाया मिला हुआ है, ये रन का बटन दिया हुआ है और ये कंसोल आउटपुट है। बट ये भी एरर आइडेंटिफाई नहीं करता। हमारा जो स्पाइडर है वो एरर जो है वो आइडेंटिफाई कर देता है, क्योंकि इसमें इनपुट स्क्रीन ये रही और आउटपुट स्क्रीन ये रही। तो आप जो भी एरर करेंगे लाइन नंबर पे इंटरप्रेटर उसी वक्त बता देगा। इंटरप्रेटर और कंपाइलर समझते हैं ना, यू हैव स्टडी इन द प्रीवियस क्लासेस। सो अब यहाँ पर प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, मैंने आई हैव क्लिक ओवर हियर, तो यहाँ पर प्रिंट आ जाएगा हेलो वर्ल्ड। अब जो कुछ भी मैंने प्रिंट करना है पाइथन में, आई विल बी यूजिंग प्रिंट कमांड, गिविंग द ब्रैकेट अदनान अहमद उस्मानी इज एग्जामिनर, ओके 9618। अब आपने इसको रन किया, अब आपकी जो है वो एक और लाइन यहाँ पर आ गई, ये हमने खुद ऐड की है। तो इसमें ये फायदा है कि आप जब इसके मॉड्यूल में जाएंगे, ये आपको प्रिंट का फंक्शन दोबारा समझाएगा, कॉमा दिया है तो ये थोड़ा स्पेस देके आ जाएगा हेलो वर्ल्ड। तो इस तरह प्रिंट के जितने भी फंक्शन है पाइथन के अंदर, वो सारे आपको क्लियर हो जाएंगे। बस थोड़ा थ्योरी ना पढ़े, भले आप प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखें इसके अंदर दी हुई हैं, उनको आप रिव्यू करें, थोड़ा सा हम आगे लेके जाएंगे। तो फिर इसमें और भी फंक्शन आएंगे, लैब हमारे पास आ जाएगी, ये ब्लैंक दिया हुआ अपनी मर्जी से प्रिंट कर सकते हैं। और थ्योरी के थोड़ा सा स्किप करके ये मूव टूवर्ड्स, अब यहाँ पर देखें इसने 2 लाइनें दी हुई है, सारी बातें 2 दफा प्रिंट लिखेंगे
तो नीचे 2 दफा आपका टेक्स्ट जो है वो आउटपुट आ जाएगा, जैसे आप आउटपुट लिखते थे सूडो कोड के अंदर, जस्ट लाइक यू राइट आउटपुट इन द सूडो कोड। अब यहाँ से आप आगे जाएंगे तो इसमें अलग अलग प्रिंट के फंक्शन आ जाएंगे कि दो स्टेटमेंट को आपने गैप कैसे देना है। अब मुझे एक लाइन का गैप देना है, पहले ऊपर मैंने एक स्टेटमेंट दी, दूसरी डाउन कम वाली मैंने एक स्टेटमेंट दी, बीच में प्रिंट को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। सो अब ये होता है जब हम T4 प्रैक्टिकल करते हैं तो वी शुड सिट इन द कंप्यूटर लैब एंड इन द फ्रंट ऑफ कंप्यूटर। हमें कंप्यूटर के सामने होना चाहिए, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होना चाहिए। अच्छा, हफ्ते को और इतवार को जो मैंने क्लास रखी है उसमें आप अपने घर पे होंगे, तो वहां से जो है आप ऑनलाइन कंडक्ट करके अपने जो भी गैजेट्स हैं वो लेके और साथ साथ आप क्वेश्चन करेंगे, ताकि आपने सिर्फ सुनना नहीं है, आपने प्रैक्टिकल साथ साथ करना है। वो कहते हैं ना, गाड़ी है मैं आपको गियर लिख के दे दूं और चलाने का तरीका लिख के दूं, आपको नहीं आएगी जब तक आप अपने हाथों से नहीं करेंगे। जिस वक्त टीचर करवा रहा है प्रैक्टिकल, ही विल बी डूइंग एट द सेम टाइम ऑन योर कंप्यूटर, आइदर ऑन योर पर्सनल गैजेट। एंड इसका मैंने आपको, इसका भी मैं आपको लिंक दे देता हूँ दोबारा, ये आप ले लें। और इसके अलावा मैं सिस्को वाले कोर्स का भी दे देता हूँ, उस पर आपकी जीमेल आईडी, फर्स्ट नेम लास्ट नेम कंट्री से जो है वो इनरोल हो जाएगा। देन यू कैन डिस्कस विद मी। मैं इसको समझा रहा हूँ थोड़ा कोर्स को, कि आपको बाहर कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, और अगर बाहर आपको जाके कोई काम देता है असाइनमेंट, तो वो आप यहाँ पर कर लेंगे स्पाइडर के ऊपर। ठीक है, तो अब जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो इन दोनों लाइनों के गैप के स्टेटमेंट में देखें एक लाइन का गैप आ रहा है। यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? इसका नाम है वेबसाइट का नेट अकेड। ये आपके बेसिक्स की आपको प्रैक्टिस करवा देगा, जो आपकी हेजिटेशन है वो रिमूव कर देगा। हर मॉड्यूल आप क्लियर करेंगे, फाइनल एग्जाम आप देंगे तो आपको ये मिल जाएगा। अगर इंस्ट्रक्टर लीड पे करेंगे तो फिर इंस्ट्रक्टर फाइनल एग्जाम करेगा। मुझे बोलेंगे मैं इंटरनेशनल एकेडमी है NAG, उसमें फिर मैं आपको आपकी ईमेल आईडी से इनरोल कर दूंगा, तो आपको जो है वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट का थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा। खुद पे करना चाहें तो सेल्फ पेज पे भी कर सकते हैं, उस पे भी सिस्को का सर्टिफिकेट मिलेगा और पाइथन का मिलेगा। अच्छा, फिर इसके बाद अब आपने क्या करना है, इसने स्पेस दे दिया है, अब स्लैश एन दिया हुआ है, यानी स्लैश एन का मतलब होता है न्यू लाइन। सो अब इसको हम रन करके देखते हैं, यहाँ पर भी बीच में स्लैश एन डाला है, ये एक स्टेटमेंट है। यू नो अबाउट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग शुड कम इन द कोटेशन। ठीक है, दोनों तरफ कोटेशन होते हैं। सो व्हेन वी रन दिस, तो आपका देखें हर सेंटेंस अलग अलग लाइन में आ गया। एक तो आपने एक लाइन का गैप दिया है, ये स्टेटमेंट अलग थी, और ये अलग, अलग करने के लिए बीच में स्लैश एन लगा दिया, न्यू लाइन। सो इसके बाद वाली लाइन बिट अप द वाटर स्पॉट, तो ये अलग लाइन में आ गया और ये अलग लाइन में आ गया। तो इस तरह आपको जो क्लियरिटी है वो एक एक चीज प्रिंट प्रिंट फंक्शन आपको पूरा सिखा देगा। आगे चल के जब आप अगले मॉड्यूल में जाएंगे, जैसे अभी एंड हो जाएगा क्विज के ऊपर, तो फिर ये आपको वेरिएबल्स डिक्लेयर करना सिखाएगा। यू मूव टूवर्ड्स द वेरिएबल्स, और जब आप जाएंगे तो फिर ये आपको यहाँ पर वेरिएबल्स के बारे में बताएगा। टेम्पररी स्टोर करता है, जो आपने पहले पढ़ा है। वेरिएबल का नेम होगा, उसके अंदर एक वैल्यू जो है वो सेव होगी आपके पास। ठीक है, अपर केस, लोअर केस, केस सेंसिटिव, क्या क्या चीज़ें अलाउ नहीं है, करेक्ट चीज़ें क्या क्या है वेरिएबल के अंदर, ये सारी चीज़ें आपको बताएगा। ठीक है, और कौन कौन से कीवर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं, हाउ टू क्रिएट अ वेरिएबल इन पाइथन। पाइथन में आपको डिक्लेयर नहीं करना पड़ता, पाइथन खुद ही आइडेंटिफाई कर लेता है। अब जैसे मैंने यहाँ पर होल नंबर में एक वेरिएबल VAR बनाया और प्रिंट VAR किया, और जब मैं इसको प्ले करूंगा, क्योंकि VAR में मैंने 1 डाला है, तो इट बिकम इंटीजर। अगर मैं यहाँ पर कोई नाम डालूंगा तो फिर ये स्ट्रिंग बन जाएगा। तो पाइथन जो है उसको कोई मसला नहीं होता। अब अगर मैंने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया और यहाँ पर मेन के अंदर इक्वल का साइन डाला वेरिएबल के अंदर, और यहाँ लिख दिया अदनान अहमद उस्मानी,
अब मैं इसको रन करूंगा, लेकिन अदनान अहमद उस्मानी प्रिंट नहीं होगा जब तक मैं प्रिंट की कमांड यूज नहीं करता। मुझे आउटपुट स्क्रीन पे कुछ भी शो नहीं आता, देयर इज नथिंग ऑन द स्क्रीन। तो देखिए वही वन इसने दोबारा कर दिया। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं चेक करूँ कि नेम का जो मेरा वेरिएबल है, जिसमें एक मैंने वैल्यू ली है, आई पुट इट ओवर हियर नेम। और अब मैं इसको जब रन करूंगा, व्हेन आई एम रनिंग दिस, ठीक है, तो अब देखिए वन, 3 दफा वन हो चुका है। अब अदनान अहमद उस्मानी आ गया, बिकॉज अदनान नेम इज होल्ड द डेटा अदनान अहमद उस्मानी। सो इस तरह से ये आपको एक्सरसाइजेज दी हुई हैं। जब आप इसमें नीचे जाएंगे तो ये मजीद आपको एग्जांपल्स देगा। और हाउ टू यूज एन वेरिएबल के अंदर अब इसने थोड़ा सा बढ़ा दिया है। अब अगर आप गौर करें तो इसने एक वेरिएबल वी ए आर इक्वल टू वन लिया है। फिर अकाउंट बैलेंस जो है रियल डेटा टाइप में किया है। यू नो अबाउट डेटा टाइप्स, आई नो नीड टू एक्सप्लेन यू अबाउट द डेटा टाइप्स। यस सर। डेटा टाइप्स का तो आपको ऑलरेडी पता होगा, स्ट्रिंग, चार, बुलियन, ये सारे तो कॉमन है, बिल्कुल बेसिक्स हैं। यस सर। ठीक है। अब यहाँ पर देखें, एक वेरिएबल जो है वी ए आर है, दूसरा अकाउंट बैलेंस है, तीसरा क्लाइंट नेम है, और प्रिंट वी ए आर अकाउंट बैलेंस। अब यहाँ पर तीन वेरिएबल की वैल्यू एक साथ कर रहे हैं, फिर एक की दोबारा रिपीट कर रहे हैं। जब हम इसको रन करेंगे तो ये पूरा एक ही लाइन में आ गया कॉमे के साथ। ये अलग वेरिएबल था, दैट इज अलग, डिफरेंट वेरिएबल, दैट इज डिफरेंट वेरिएबल, एंड दैट इज डिफरेंट वेरिएबल। You understand the example the Python essential course is giving to make you an entry level programmer. You know how to do coding in this environment. कोर्स कैसा लगा आपको, समझ में आया, कुछ अच्छा लगा? जी सर। ठीक है। अच्छा, अब ये मैंने दो तरीके बताए, एक तो साइन अप, आप माशाल्लाह सब समझदार हैं, यू कैन साइन अप वेरी इजीली। और अगर आपको मेरे थ्रू करना है तो फिर आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एंड देन ईमेल एड्रेस। लेकिन उससे पहले भी आपको इसमें यहाँ पर जाके साइन अप करना पड़ेगा, क्योंकि इसका रूल ये कि पहले आप साइन अप करेंगे फिर आप मुझे अपना ये सारा डिटेल देंगे। तो आपका अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ होगा तो मैं आपको फिर इंस्ट्रक्टर लीड पे कर लूंगा। अदरवाइज सेल्फ पेज पे आप कर सकते हैं और फिर देन क्विज जो है वो क्लियर कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, टोटली योर चॉइस। सो अब इसी तरीके से जब ये आगे जाएगा तो इट विल बी गिविंग मोर एग्जांपल्स। ये से रिपीट कर दिए दोबारा। अब यहाँ पर देखें, इसने स्ट्रिंग दी है और फिर इसमें प्लस किया पाइथन वर्जन प्लस वी आर। क्या आपको लगता है ये वर्क करेगा? यानी कि स्ट्रिंग जो है वो नंबर में ऐड हो सकता है? बल्कि सॉरी, ये तो है ही स्ट्रिंग, और बीच में प्लस का साइन आ रहा है। तो अब आपने ये चेक करना है, तो इसके लिए लैब की प्रैक्टिस के लिए आप यहाँ आ जाएंगे, अपने डेस्कटॉप बेस्ड कंसोल पे आ जाएंगे। वो तो ऑनलाइन चल रहा है, कंट्रोल प्लस से इसमें बड़ा हो जाता है, आपको सही नजर आएगा टेक्स्ट। ये कोटेशंस कमेंट्स के लिए यूज होते हैं जब हमें सिर्फ कमेंट्स बनाना हो किसी चीज को, और हैश भी कमेंट्स के लिए यूज होते हैं। बट इसको करने के बाद लाइन को रीड नहीं करता, ऊपर नीचे तीन अगर आप कोटेशन से दें। तो इसको आपने रिमूव किया यहाँ पर। अब आप इसको रन करेंगे और चेक करेंगे कि इज देयर एनी लॉजिकल एरर। देयर इज नो लॉजिकल एरर, क्योंकि ये भी स्ट्रिंग था, ये भी था। आपको कनकैटिनेट यूज नहीं करना पड़ा। कनकैटिनेट, यू नो, एस जैसा साइन होता है, अबाउट इन द pseudocode यूज टू कनकैटिनेट टू स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग स्टेटमेंट्स को जोड़ने के लिए आप यूज करते थे। सो यस। इस तरह की जो लैब प्रैक्टिस है जो वहां कंसोल पे नहीं है, उसको आप कॉपी करके एंड देन यू चेक इट, इट विल बी गिविंग यू द आउटपुट। यहाँ पर भी आपको आउटपुट मिल जाएगा कि ये भाई आपका लैब का जो है ना वो आंसर है। यहाँ पर भी आ गया, जो चीज यहाँ आ रही है कंसोल में, आउटपुट जो है वो यहाँ पर आ रहा था। स्क्रीन को अपनी तरफ से आप मूव भी कर सकते हैं, छोटा और बड़ा जिस तरह है। और यहाँ पर भी आपकी देखें एस टी आर लिखा हुआ है, टाइप साइज लिखा हुआ है, और फिर यहाँ पर वैल्यू आ रही है। ठीक है, यहाँ पर शो हो रहा था किस वेरिएबल को किस तरह वैल्यू जा रही है। ऊपर वाली विंडो में शो कर रहा होता है हाउ द प्रोग्राम इज ट्रेसिंग। ट्रेस टेबल आपने बनाया होगा,
तो ट्रेसिंग प्रोग्राम कोड में नजर आ रही होती है। सो मैं डायरेक्ट अभी पास पेपर पे जाना नहीं चाह रहा, क्योंकि मैं चाह रहा बेसिक बता दूं। देन वी मूव, ये इसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं स्टैक के, और फिर एविडेंस फाइल में किस तरह पेस्ट करना है ये भी सिखाऊंगा, तो यू फील कंफर्टेबल इन दैट। बट आपको जो है वो एरे वगैरह डिक्लेयर करना और वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करना है ये भी आ जाएगा। ये कोर्स आप करने के बाद थोड़ा सा ये कि जिन्होंने नहीं पढ़ी भी बेसिक, डजंट नो एनीथिंग अबाउट दिस, तो उनकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब यहाँ पर देखें, इसने सेकंड वाले में इंक्रीमेंट लगाया है, वी ए आर इक्वल टू वी ए आर प्लस वन। जैसे आप काउंटिंग करते वक्त लगाते थे काउंटिंग वाले फार्मूले में, यू हैव डन दिस। सो पहले वी आर को वन वैल्यू दी, फिर वी आर में एक और प्लस किया। सो व्हाट विल बी द वी आर वैल्यू नाउ? अगर इस कोड को देखेंगे तो अब वी आर की सेकंड वैल्यू क्या होगी? बाकिर या हमना तौकीर, वी आर की अब क्या वैल्यू हो जाएगी? पहले वी आर की वन थी, फिर वी ए आर में इंक्रीमेंट हुआ, अब क्या वैल्यू हो जाएगी? यस एग्जैक्टली, वेरी गुड आंसर, टू हो जाएगी। क्योंकि यहाँ देखिए पहले वन थी, फिर उसमें वन प्लस किया, पहले वाले से पहले प्रिंट किया, और सेकंड में जब तक ये प्रिंट नहीं करेगा आपको आउटपुट स्क्रीन पे नजर नहीं आएगा। अच्छा, हमारे यहाँ ये फायदा है कि इन केस अगर मैंने प्रिंट की स्पेलिंग गलत कर दी, क्योंकि पाइथन में सारे अल्फाबेट स्मॉल आते हैं, कैपिटल यूज नहीं करते आप, जो उसकी कीवर्ड्स होते हैं। मैं वेरिएबल्स की बात नहीं कर रहा, वेरिएबल में तो आप कैपिटल स्मॉल कर लें, ठीक है। तो इसको अगर आप कैपिटल कर देंगे तो यहाँ पर ये आइडेंटिफाई कर देगा दैट इज एन एरर, कोड एनालिसिस, ठीक है। अनडिफाइंड नेम, ये क्या लिखना शुरू कर दिया आपने? सो ये फायदा ये होता है पाईचार्म और इसके अंदर कि ये व्हेन आई एम अ P4 एग्जामिनर, तो बच्चे अपना अपना कंसोल पहले बता देते हैं फाइनल पेपर से पहले कि हमें ये चाहिए। CAIE उनको एक ईमेल करता है स्कूल वालों को, फॉर्म हर कैंडिडेट के हिसाब से, जितने कैंडिडेट्स होते हैं उसके हिसाब से वो बता देता है मुझे ये कंसोल चाहिए। और हम लोग क्या करते हैं, उसमें पहले से 10-15 कंसोल डाल देते हैं, जैसे VS कोड है, पाईचार्म है, इंटेल IDE है, ठीक है, IDLE है, जो बेसिक है आपका, इसमें शैल अलग से होता है, अलग अलग होती दोनों चीजें, वो फर्स्ट है, ठीक है। तो अब ये है कि आपका पहले रनिंग के वक्त बच्चा बैठा हुआ होता है पेपर आने से पहले, तो वो ये काम कर रहा होता है। मैं अगले क्लास के अंदर P4 के भी स्क्रिप्ट आपको दिखाऊंगा, और किन चीज़ों पे बच्चों के नंबर कटते हैं P3 के अंदर, P3 के भी टॉपिक करवाऊंगा। P3 के टॉपिक्स आपने किए हुए स्टार्टिंग? जी, एनीवन फ्रॉम यू? यस सर, क्लियर। P3 के आपने कौन कौन से चैप्टर 1 कंप्लीट किया हुआ? मेंटिस एंड एक्सपोनेंट वाला जो आपको है चैप्टर। डेटा रिप्रेजेंटेशन है, उसमें फाइल ऑर्गेनाइजेशन है, और आपका मेंटिस और एक्सपोनेंट वाला है, और आपका यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, जो आपने पहले पढ़ी थी AS पेपर 2 में। बस 2-3 चीजें उसमें न्यू है, और थोड़ी सी प्रैक्टिस टफ है उसके अंदर। कल अभी फिलहाल तो अभी हम सैटरडे तक जो है वो, और संडे तक हम पाइथन पे कुछ कमांड हासिल करेंगे कोडिंग के ऊपर, और अपना स्टैक वाला एक टॉपिक है, उसको हमने कैसे करना है पास पेपर के हिसाब से वो करेंगे। फिर आपको कुछ असाइनमेंट मिलेंगे ताकि पता चले कि आपको कितना समझ में आ रहा है और आप कितना कर रहे हैं। आई विल बी ज्वाइनिंग सून विद इन अ मंथ, सो वी विल बी हैविंग फिजिकली मीटअप इंशाल्लाह। तो अब यहाँ पर जो है आपके पास, हम कोर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे ये, तो इसमें जो है वो सारी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी बेसिक, जैसे भी आपको चीजें समझ में आ रही है, इज वेरी इजी एंड फ्रेंडली। अब यहाँ पर देखिए ये कह रहा है कि इसका आंसर चेक करें। अब यहाँ ये चेक करके आउटपुट दे देगा। अब इसको चेक करने के लिए आई कैन जस्ट कॉपी फ्रॉम हियर एंड पेस्ट ऑन माय पर्सनल कंसोल, मैं यहाँ डाल दूंगा। अच्छा, ऊपर वाला मैंने रीड नहीं करना है, तो मैं क्या करूंगा, 3 कोटेशन ऊपर दूंगा और 3 कोटेशन मैं लास्ट में दे दूंगा। तो अब ऊपर वाली लाइनों को ये रीड
नहीं करेगा, एज अ कमेंट्स इसको यूज करेगा। और इसमें जब सेव करना हो फाइल को, तो फाइल में जाके फिर आप सेव एज करते हैं जैसे नॉर्मल सॉफ्टवेयर में करते हैं, तो यू कैन डू इट इजीली। ठीक है, इसमें पाइथन की सारी एक्सटेंशन आ रही हैं, डॉट पाई भी लिखा हुआ है, तो वो आसानी से आपकी जो लोकेशन है डेस्कटॉप या कहीं भी आप उसको सेव कर सकते हैं और उसको नहीं दे सकते। तो अब हम जब इसको रन करेंगे, व्हाट विल बी योर आंसर? पहले इसकी 100 थी वैल्यू, वो रिमूव हो जाएगी क्योंकि वेरिएबल में एवरी टाइम यू हैव अ न्यू वैल्यू। ओके, टेम्पररी होल्ड करता है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। सो व्हाट विल बी योर आंसर व्हेन आई रन दिस? आई विल हैव टू सी द आउटपुट स्क्रीन। क्या आंसर आएगा? आई हैव सम आंसर। कह रहा 500 ओनली बिकॉज 600 नहीं हो सकता। पहले प्रिंट करेगा, नहीं प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि हमने 100 के बाद प्रिंट बी आर नहीं लिखा। अगर हमें प्रिंट करवाना है 100 को भी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट देन ब्रैकेट देन वेरिएबल, और ये खुद से लिखा हुआ दे देता, तो फिर आपको टाइप नहीं करना पड़ता। गेटिंग माई पॉइंट? मैं बेसिक्स क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप में से ऐसे होंगे जिनको बेसिक्स नहीं पता होगी, तो बस हम डायरेक्टली मूव टूवर्ड द पास पेपर, और फिर हम क्या है भाई, ये हम अज्यूम कर लें इनको पहले से आते चीजें, तो ऐसा नहीं है। आपको पहले स्टूडेंट लेवल पे पहुंचना पड़ता है, उसकी प्रॉब्लम को समझना पड़ता है, देन फिर आपको मूव करना पड़ता है नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो मैंने क्योंकि प्रिंट 100 से पहले क्यों किया कि मैंने यहाँ प्रिंट अपनी तरफ से ऐड कर दिया। अगर मैं ये चीज यहाँ से रिमूव कर दूंगा, यहाँ देखें आई एन टी इंटीजर बता रहा है, आई एन टी इंटीजर 1 है, वैल्यू क्या है 500 है। सो ये इसका ट्रेस टेबल है जो ऊपर टॉप पे आपको दिखा रहा है। और मुझे ये होता है कि भाई आपने अगर अगर एक लाइन का आपने गैप देना होगा, तो फिर वो आप प्रिंट खाली ब्रैकेट के साथ डाल देंगे। सो इस तरह करते करते यू विल बी हैविंग अ वेरी गुड प्रैक्टिस। ठीक है, जब आप इसको चेक करेंगे तो इसका जो भी आंसर होगा, क्योंकि 100 नहीं करेगा, वो ये बता रहा है कि 200 को 300 में करेगा, पिछली वैल्यू डिलीट हो जाएगी। एक्सप्लेनिंग दिस, सो वी ऑलरेडी एक्सप्लेन बाय सॉल्विंग सिंपल मैथमेटिकल प्रॉब्लम भी आप सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ ये नहीं कर सकते, जैसे ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है। अब सी एक वेरिएबल है जो ए को स्क्वायर ले रहा है और बी का भी स्क्वायर आ रहा है। दो दफा स्टार का मतलब क्या होता है आपके पास, कि ये 2 टाइम पावर की तरह मल्टीप्लाई करेगा, वरना पावर का साइन हमारे पास डिफरेंट होता है, बट पाइथन में आप यहाँ स्टार का साइन यूज करते हैं, यूजिंग स्टार साइन। एंड देन फिर सी की वैल्यू एक स्टेटमेंट के साथ प्रिंट कर रहा है। तो इसको यहाँ से कॉपी करें, ये कह रहा है अपने कंसोल में जाएं, जो आपका अपना कंसोल है। अगेन यू आर नॉट यूजिंग दिस अपर लाइंस, नीचे वाला यहाँ से मिटाएं और 3 कोटेशंस दोबारा एक साथ इसको दे दें, इट बिकम द कमेंट। अब आपने नया कोने से शुरू करना है। अब ए की वैल्यू भी आ गई, बी की वैल्यू भी आ गई, सी की भी आ गई। और जब आप देखेंगे नीचे, तो आप पे एक आंसर आ गया, सी फाइनल आंसर इज 5.0। ये था 3, B 4 था, ये मल्टीप्लाई बाय डबल मल्टीप्लाई बाय 0.5। अच्छा, आपने अगर अपने दो नंबर्स का सम निकालना है, अगर आप यहाँ पे प्रोग्राम बनाते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स। अब आप यूजर डिफाइन बनाना चाह रहे हैं विद स्टेट फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स। तो अब देखें, अब आप उसमें क्या करेंगे, इट्स वेरी वेरी सिंपल, कि आप यहाँ पर एक वेरिएबल लेंगे num1, वेरिएबल नेम में स्पेस नहीं होना चाहिए, INT देन ब्रैकेट इनपुट। अब इसी में आप स्टेटमेंट भी जोड़ देंगे, आप कितनी आसानी है। और यहाँ आप लिखेंगे इंटर द फर्स्ट नंबर। ये आपने लिख लिया। अब पहला तो आपने लिख लिया, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट कॉपी एंड पेस्ट इट
num2 के लिए 2 नंबर का सम आपको निकालना है। बहुत सिंपल है एल्गोरिथम, कंट्रोल V एंड दैट इज num2, और यहां से हम इसको कर देंगे सेकंड नंबर। You put it the second number over here. Now, what we are doing, sum equal to num1 plus num2. अच्छा, मैं इसको रन भी कर लूंगा, फिर भी मेरा आउटपुट नहीं आएगा, नंबर ले लेगा। आउटपुट लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसमें एक चीज मिसिंग है, मेरा प्रिंट प्रोग्राम सही सम, तरीके से रन नहीं करेगा, एक लॉजिकल एरर। फिर प्रिंट सम, प्रिंट का फंक्शन यूज करना। बिल्कुल, प्रिंट का फंक्शन नहीं करेंगे तो सम के अंदर जो वैल्यू जाएगी, क्योंकि अभी देखें इसने यहाँ पर फ्लोट ले लिया, एक को INT बना लिया था पहले वाले के अंदर, तो इसको तो हम इधर से यहाँ गायब कर लेते हैं, क्योंकि डेटा टाइप भी यहाँ बता रहा है। ये कमेंट्स यहाँ से हटा के इसको बना देते हैं कमेंट्स, ताकि इसको रीड ना करें। अब ये कह रहे हैं कि बता रहे हैं कि हमारी गलती भी है, मिस्टेक ओवर हियर सम। अब आप इसको रन करेंगे तो ये पहले आपसे आपकी मर्जी गई, यूजर डिफाइन बन गया, वो प्री डिफाइन था कि आपने वैल्यू दे दी और उसने डेटा टाइप पहचान भी ली प्री डिफाइन के अंदर। बट यूजर डिफाइन में आपको आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगी कि मैं इंटीजर यूज कर रहा हूँ।